हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज का वी हैव दिस टॉपिक एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. इट वाज कवर्ड इन कुरुक्षेत्र मैगजीन. लेट्स डिस्कस दिस. इंट्रोडक्शन. इफ वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन जनरल, almost 50% of Indian population is employed in agriculture sector, and almost 20% of GDP contribution comes from agriculture sector, and major chunk like 20 to 30% of your foreign exchange comes from agriculture sector. So hence जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वो प्रीडोमिनेंटली डिपेंड करती है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर. हेंस वी नीड टू स्ट्रेंथन दिस agriculture sector to strengthen the rural economy if we want to revive this post covid world. In the post covid world अगर हम बात करें what are the problems, सबसे पहले one of the most crucial problem is that there is disguised unemployment in the agriculture sector because people are employed in excess of the requirement. For example, if an agriculture field require only 2%, but right now 3 people are working in that particular field, so 1 people is disguisedly unemployed. And there is another problem, that is seasonal unemployment, where during a specific period, for example during sowing period or harvesting period, people are getting job and rest of the time they are free. That's why the problem comes of the problem named as seasonal unemployment. So जो आपका एग्रीकल्चर है that predominantly means that heavily depends upon monsoon, and because of that most of the country are frequently under flood or like drought or any kind of like your agriculture related problem like pest attack or anything like that. आपकी जो एग्रीकल्चर है वो प्रीडोमिनेंटली डिपेंड करते हैं मॉनसून पे, तो इस वजह से आपके वहां पर ड्रॉट आ जाते हैं और फ्लड्स आ जाते हैं. और कई बार अगर वो चीज नहीं आती तो प्रॉब्लम ये आ जाती है, वी हैव दी पेस्ट अटैक एंड ऑल. सो प्रोडक्टिविटी इज मोर और लेस कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर की. दैट्स व्हाई वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड हेंस वी हैव टू लुक बियॉन्ड एग्रीकल्चर. सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करना है. इफ वी वांट टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड एग्रीकल्चर एंड हेंस वी हैव टू लुक अपॉन द थिंग्स लाइक एनिमल हस्बेंड्री, pisciculture, horticulture, floriculture, apiculture, sericulture. We have to look beyond the agriculture field. So let's see what animal husbandry can do. India is the largest producer of milk, and to increase gainful employment in India, we have to look beyond this agriculture field. So अगर हम बात करें जो आपके marginal farmers हैं, in case of natural calamity they get extra income from this particular section because the cattle milk they sell, they will get extra earning from that, and hence it is just like an insurance scheme for them. Hence we can say animal husbandry provide a cushion to the farmers. If we talk about India is the largest producer of milk, as I told you, one of the largest producer, and almost 19%, nearly 19% of the world's milk is produced by India itself. अगर हम बात करें, अगर we want to मतलब enhance the productivity or the outcome of this animal husbandry sector, so what we have to do is we have to focus on certain schemes. For example, government has taken such a nice initiative like National Livestock Mission, Rashtriya Gokul Mission, National Program for Dairy Development, National Program for Bovine Breeding, National Kamdhenu Breeding Center. This should be promoted, and moreover the foot and mouth disease, which is a problem in rural area, that should also be contained. उसके लिए भी प्रोग्राम कहीं ना कहीं इंडिया में चल रहा है. एंड अगर ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इससे बेनिफिट ये है कि दैट वी कैन एक्सपोर्ट टू, एंड इसके अलावा इंडिया की फूड सिक्योरिटी भी हम कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकते हैं. अगर हम आगे बात करें, and moreover calcium, the milk contain calcium, and most of the Indian population, for example 50% of the women in the age group of 30 and 35, they are like calcium deficient, तो कहीं ना कहीं उसको भी हम cater कर सकते हैं. अब pisciculture, we have a very diverse resources for fishing, because अगर हम बात करें ये ऑलमोस्ट आपके कितने परसेंट एरिया मतलब
हम बात करें तो 16 मिलियन आपके फिशरमैन्स को जॉब प्रोवाइड करता है, बट इससे डबल वो हैं जो इसकी सप्लाई चेन में लगे हुए हैं। सो इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ ह्यूज पॉपुलेशन। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, देयर आर वेरियस लेक्स, रिवर्स एंड इवन इंडियन कोस्ट लाइन इज अराउंड 7500 किलोमीटर। सो हमारे पास फिशेस की वैरायटी बहुत है। वी हैव टू डू व्हाट इज, वी हैव टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर, लाइक गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये स्टार्ट हुआ था 2018 में एंड एम था वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 2022 एंड 2023। अगर हम बात करें, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी फोकस किया गया है। ठीक है जी, तो दिस इज अ स्कीम, बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन फिशरमैन्स के पास अभी भी बोट्स जो हैं वो बहुत पुअर क्वालिटी की हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल। सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम इज, कहीं ना कहीं जो वो लाइक फिश कैच करते हैं, कहीं ना कहीं वो खराब भी हो जाती है। एंड मोर ओवर द लाइक वेरियस केमिकल दे यूज फॉर प्रिजर्विंग द फिशेज कहीं ना कहीं हार्मफुल इम्पैक्ट जनरेट करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी एक मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की, तो उसमें फिशिंग भी एक मेजर आपका रोल प्ले करता है, बिकॉज इंडिया का जो सी फूड है वो बहुत डिमांड में है वर्ल्ड लेवल पे। इफ वी टॉक अबाउट, देयर इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये स्टार्ट हुई थी 2020 में, एंड दिस स्कीम इज वेरी क्रूशियल फॉर योर लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। एंड इसमें ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात की है, कहीं ना कहीं उसे सस्टेनेबल बनाने की बात हुई है, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इन फिशिंग इन एवरी सेक्टर वी आर डूइंग राइट नाउ, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम ये रहती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल बैलेंस बनाने की जरूरत है बिटवीन नीड एंड ग्रीड। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर, एज इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री एंड हमारे यहाँ पर डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो वी कैन प्रोड्यूस एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ लाइक मेजर क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हेंस अगर हम बात करें, क्रॉप्स के अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल भी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स एंड जस्ट बिलो दी चाइना। अगर हम बात करें, वी आर रैंक्ड फर्स्ट फॉर बनाना, papaya, mango, lemon. These are highly like ginger. They are like highly, मतलब highest production कहाँ पर है? इंडिया में ही है। If we talk about, there is one scheme, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये 2014 में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, सो दैट दे कैन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में फायदा ये रहता है दैट दे आर लाइक नॉट वेरी लॉन्ग टर्म क्रॉप, फार्मर्स को रेडिली इनकम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्राइस फ्लक्चुएशन। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उस प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है। अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर की, रिसेंटली इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेंड आया है, फ्लावर बहुत ज़्यादा उगाने लगे हैं एंड दे आर ह्यूज डिमांड इन लाइक, आजकल ये रोज डे, ये डे वो डे चलता रहता है, तो दैट्स वाई फ्लोरिकल्चर बहुत ज़्यादा ही अर्बन एरिया में तो फ्लरिश कर रहा है। एंड मोर ओवर नॉट जस्ट इन अर्बन एरिया, आउटसाइड इंडिया भी फ्लरिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो एज इंडिया इज एग्रो डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में, तो वी कैन हैव वेरियस काइंड ऑफ फ्लावर्स, सो हेंस जिनकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से हम अब कमर्शियल लेवल पे भी इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं एंड यूएसए, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी एंड यूएई, ये हमारी हाईएस्ट, मतलब यहाँ पर हम हाईएस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंपोर्टर हैं हमारे। अगर हम बात करें, इट इज़ अ सनराइजिंग इंडस्ट्री जहाँ पर 100% आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेटस दिया है। अगर हम बात करें, इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या किया है, 6 एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स एस्टैब्लिश किए हैं, जो कि कर्नाटका में है एक, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तराखंड और 2 तमिलनाडु में हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने इंट्रोड्यूस करे हैं सेवरल मेजर्स, जिससे हम इसकी जो कह सकते हैं स्कीम, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना हो, पैकेजिंग वगैरह डेवलप करनी हो, तो उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है, और मार्केट डेवलपमेंट, सब्सिडीज ऑन एयर फेयर वगैरह, इनके ऊपर वर्क करने की कोशिश की है, ताकि हम फ्लोरिकल्चर को इंडिया में और ज़्यादा क्या कर सके, प्रमोट कर सकें। अब बात करते हैं एपीकल्चर।
व्हाट इज एपीकल्चर? बी कीपिंग को ही एपीकल्चर कहते हैं, कोई अलग से टर्म नहीं है। अब बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर है बिकॉज इसमें कॉस्ट जो है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। अब इसमें आप नॉट जस्ट आप हनी जनरेट करते हो, रॉयल जेली, बी वैक्स, पॉलन और भी बहुत कुछ, बी वेनम, आप बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। इंडिया का अभी रैंक 8th है, वी कैन स्टिल गो बियॉन्ड दैट थिंग, मतलब फर्स्ट या सेकंड रैंक पे आ सकते हैं, बट वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ मिलकर प्रमोशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात की है बी कीपिंग की, एंड नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये स्वीट जैसे ब्लू रेवोल्यूशन है वैसे ही स्वीट रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करता है। एंड इसके अंदर 3 सब कंपोनेंट्स हैं। अगर हम बात करें, पहले तो कहता जी साइंटिफिक मैनर में बी कीपिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे। अगर हम ये चीज़ें कर पाते हैं, अब जैसे आपको याद होगा आपकी ट्राइबल्स एरिया में ट्राइब्स के द्वारा हनी कलेक्ट किया जाता है एंड दैट इज ऑल्सो परचेज बाय सर्टेन लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इस चीज़ को भी प्रमोट कर रही है। कल भी हमने अपने करंट अफेयर में डिस्कस किया था, लाइक फॉरेस्ट फायर की वजह से जो आपकी बी कीपिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उड़ीसा में, तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल एरिया है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और इसी को हम इन्हेंस कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे जो किसान हैं वो अपने खेतों में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लग जाएं, एपीकल्चर को। लास्ट तो नहीं बोलूँगा, सीरीकल्चर अगला पार्ट है। सीरीकल्चर यानी कि सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया 2nd प्लेस पे आता है आफ्टर चाइना अगेन। अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास कमर्शियली 4 वैरायटी मिलती है आपकी, मलबरी, इरी, तासर एंड मुगा। ये चारों वैरायटी जो हैं सिल्क की इंडिया में मिलती है और ये एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी लेवल पे प्रोवाइड करता है, खासकर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें। अगर हम बात करें तो इंडिया ने एक लॉ, अगर हम बात करें इंडिया में, हम इसे फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट की थी 1948 में, और ये क्या करता है आपकी प्रोडक्टिविटी और इसको इन्हेंस करने के लिए, क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए R&D में इन्वेस्ट करता है। अगर हम बात करें सेंट्रली स्कीम एक 2017 में लॉन्च की थी, सिल्क समागर। इस स्कीम में क्या हुआ था, बेसिकली इस स्कीम में गवर्नमेंट क्या कहती है कि वी गोना इंक्रीज दी R&D, एंड इससे हम क्या करेंगे, लोग मतलब हमारे जो किसान हैं उनकी प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करके हम बेटर सिल्क वैरायटी डेवलप करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, लाइक आई टोल्ड यू सिल्क समागर, इसमें हम क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, लाइक आई टोल्ड यू, क्वालिटी के ऊपर वर्क करेंगे, साथ के साथ प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करनी है और क्वालिटी इंप्रूव करनी है और रिड्यूस करना है जो भी डिपेंडेंसी है इंडिया की इंपोर्ट पे। फॉर एग्जांपल चाइना वगैरह से सिल्क की साड़ी के लिए हम सिल्क इंपोर्ट करते हो तो उनको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस करने वाले हैं। तो एग्रो प्रोसेसिंग मतलब आगे जो इनिशिएटिव है, एग्रो प्रोसेसिंग मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे पास रॉ मटेरियल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टमाटोज, वी हैव potatoes, we have everything, but yet we do not have that much sufficient of technology, और कहीं ना कहीं उसी को वजह से हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो ज़्यादा हैं। बट अगर हम इस चीज़ को एग्रो इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम नॉट ओनली रिड्यूस करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, बट हम बहुत अच्छे प्राइसेस फेच कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड बना दी वीट से तो वो वीट वेस्ट नहीं होगी, वी कैन गेट इनकम आउट ऑफ दैट। इंडिया में एज पर लाइक राइट नाउ वी ओनली प्रोसेस 2% ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, वेयर एज ग्लोबली अगर यूएसए की बात करें इट do around food processing of 80% of the fruits and vegetable, whereas China do 40%। अगर हम बात करें इंक्रीज है डिमांड में, बिकॉज लोगों की कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज कर गई है, लाइफस्टाइल बदल गए हैं, लोग जैम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, सॉस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उस प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एंड इसका एम 2016 में ये रिलीज हुआ था प्रोग्राम। इसका एम ये था कि हम मॉडर्न लेवल पे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप करेंगे और इसमें हम सफिशिएंट
लाइक एफिशिएंट एंड सफिशिएंट अमाउंट में फूड चेन सप्लाई मतलब सप्लाई चेन को मेंटेन करेंगे सो दैट एग्रो प्रोसेस हमारे इंडिया में इनिशिएट कर सकें और हम रूरल एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके जो माइग्रेशन है कहीं ना कहीं उसको भी रिड्यूस कर सकें और रीजनल जो इम्बैलेंस है उसको भी कहीं ना कहीं हैंडल कर सकें। अब कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन इज नथिंग, जस्ट एक सिंपल सी पैराग्राफ है विच आई विल रीड फॉर यू। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कपल्ड विद इंप्रूविंग employability of rural masses have always been the priority ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इंडिया में लाइक आपका चाहे पीआरआई सिस्टम हो, चाहे आपके वेरियस जैसे रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, वेरियस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं दैट सो दैट रूरल एरिया में डेवलपमेंट आ सके। वन ऑफ द प्रायर एरिया बिकॉज इंडिया मतलब रियल इंडिया कहाँ पर रहता है, रियल इंडिया रूरल इंडिया में रहता है बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ द यूथ of the country reside in the rural area, तो hence we have to focus on them and कहीं ना कहीं हमारे को इस जो स्कीम्स हैं, वेरियस जो स्कीम्स हैं उन्हें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट। और जो गवर्नमेंट का एम है बाय 2022 वी वांट टू डबल द फार्मर्स इनकम, उसको भी अचीव करना है तो वी हैव टू डेवलप दिस एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर सो दैट फार्मर्स की इनकम का जो एम, जो हमने बहुत बड़ा एम रखा है, दैट कैन बी अचीव्ड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन. Like, share and comment on my video. Thank you very much.